So good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Kindly like, share, and subscribe our channel. To share with your friends who are preparing for OET for the best OET coaching videos. And it is requested to you to all to listen to the videos till the end. So today we are discussing about this letter, which is kind of a very simple letter. And I will start it right from the basics. Always check from the end कि हम letter किसको लिख रहे हैं. सो आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस थिंग कि लैक्टेशन कंसल्टेंट को जब आप लेटर लिख रहे हो तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस लेटर. मतलब लैक्टेशन कंसल्टेंट का मतलब ये है दैट यू आर राइटिंग टू लैक्टेशन कंसल्टेंट मीन्स इट वुड बी द फर्स्ट बेबी 99%. बिकॉज इफ द बेबी वुड बी सेकेंड बेबी तो लैक्टेशन कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, मदर को नॉलेज होती, एक्सपीरियंस होता. सो ये बहुत कुछ बताता है. तो लैक्टेशन कंसल्टेंट को आज आपने लेटर लिखना है फर्स्ट बेबी. And so it also tells कि this is the first baby. And when talking about lactation consultant, it also tells, just a second. Yeah. Okay. Just a second. Yeah. Okay. This is something new for me, this table, to use this table. Yeah. So I'm just gonna increase the font size as well. Okay. So it's talking about lactation consultant. This word teaches us a lot. Lactation consultant means the person who's gonna help with the feeding. So the person who's gonna give the knowledge to the mother about the feeding. So obviously it would be the first baby. Second thing about this letter is that when you read the last paragraph, which is the discharge plan, the major things that are there is, first thing is that if you can increase the breastfeeds. So if so we cannot say to the lactation consultant कि it would be greatly appreciated if you could increase the breastfeeds. तो ये गलतियां हो जाती हैं जल्दी में पेपर में. तो प्लीज अपने आप को समझाओ. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, स्पेलिंग ठीक कर लेना. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एनकरेज द मदर टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स. तो उस पॉइंट को आपको ऐसे लिखना चाहिए जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इंक्रीज ब्रेस्ट फीड. तो आपको लिखना चाहिए इफ यू कुड एनकरेज द मदर टू इंक्रीज ब्रेस्ट फीड्स एंड रेफर हर. फिर इस पॉइंट को मिक्स कर दो एंड रेफर हर to the breastfeeding support services. Second point, check formula feed is correctly prepared. So simple, kindly check whether the formula feed is correctly prepared or not. It is a passive voice, is MR के साथ third form. Then third point, if continuing formula feeds, advise to supplement with the water. So again, you say further, if the formula feed is continued, it would be of great help if you could advise the mother to supplement it with water. आप इतनी अच्छी लाइन भी बना सकते हो. It would be of great help if you could advise the mother to supplement. अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो, further if the formula feed is continued, then it should be supplemented with water. Simple. Then it should be supplemented with water. Simple. Then the mother should be advised to keep the baby cool. So ये line दे रखी है, you will make a passive voice. The mother should be advised to keep the baby cool and return in 48 hours. Please note, it is important to remind the mother about their review after 48 hours. तो इस लाइन को आपको ऐसे लिखना चाहिए. It is important to remind the mother to come for the review or for their review in 48 hours. So this is the last paragraph. This paragraph helps us in the data selection. ये पैराग्राफ हमारी पूरी डाटा सिलेक्शन से लेके हर चीज में हेल्प करेगा. So that is why this paragraph is so very important that it will help in everything, including the data selection. I hope it is clear to everyone. So now I will take it along. I will go to the next point now. Okay. So taking to the next point, अब आप लेटर को पढ़ सकते हो. अब आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि मेन प्रॉब्लम क्या है. मेन प्रॉब्लम यहाँ से तो ये पता लगता है कि मदर को ब्रेस्ट फीड में दिक्कत आ रही है, फार्मूला फीड को अच्छे से प्रिपेयर करना नहीं आता, इसलिए हम कह रहे हैं सप्लीमेंट विद वाटर. तो यहीं से आपका लेटर क्लियर. यही मेन पर्पस होता है लास्ट पैराग्राफ. दिस इज द मोस्ट. सबसे पहले इसको बनाओ अपने माइंड में. जब आपको ये पक्के से पैटर्न आ जाएगा, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, तो ये पैराग्राफ जो लास्ट में आना है ये सबसे पहले बनाना चाहिए आपको. ये लास्ट में आना है ऐसे नीचे. सो ये आपको सबसे पहले बनाना चाहिए. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग.
इफ आई गो टू द लेटर, अब मैं लेटर को समझने की कोशिश करूंगा। डायलन चार्ल्स है, एक बेबी है। यू आर अ मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड नर्स वर्किंग एट रोमा विले कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ सर्विस। Today's date is 15 January and baby is Dylan Charles, baby was born on 4th December. 4th December, 15 January is today's date. So baby is overall 1 month and 10 days old. Baby 1 month और 10 days old है, तो वही जो हम कह रहे थे, फर्स्ट बेबी ऑफ रेमंड एंड सिल्विया। अगेन बेबी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी होगा, तभी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फीडिंग की। एंड ऑल्सो फोर्थ को वो डिलीवर हुआ था, 8th को डिस्चार्ज हुआ था, एंड अब उसको 1 month and 7 days हो गए हैं अपने घर पे। फैमिली हिस्ट्री में मदर 24 है, फर्स्ट चाइल्ड है, फादर 25 है, करंटली अवे फ्रॉम होम, सो मदर इज ऑल अलोन। बर्थ हिस्ट्री ये कहती है कि नॉर्मल डिलीवरी थी, बर्थ वेट 3400 ग्राम था। एस्पेर्जस स्कोर जो हमें नहीं आता वो हम नहीं लिखेंगे, सो बर्थ वेट 3400 था। तो 15th को यानी टुडे, आज का डाटा दिया हुआ है, टुडे 15 जनवरी को मदर आई है, सब्जेक्टिव का मतलब कंप्लेंट्स के साथ, सिम्टम्स। तो कंप्लेंट्स क्या है मदर की? 15 जनवरी आज की डेट है। सो सिल्विया एंड बेबी अटेंडेड फॉर द रूटीन 6 वीक चेकअप। वही हम बात कर रहे थे, 1 month and 10 days या 12 days। तो 1 month and 14 days के 6 वीक्स बनते हैं। 6 वीक्स का मतलब क्या होता है? 1 मंथ में लगभग 4 वीक एंड 2 डेज होते हैं, तो बिल्कुल 6 वीक का चेकअप पता लग रहा है। सो टुडे द मदर प्रेजेंटेड विद 6 वीक चेकअप। Sylvia says that she is concerned about constipation जो बेबी को हो रही है once every 3 days। हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं। मदर इज आस्किंग अबाउट द स्टूल सॉफ्टनर। तो मदर की प्रॉब्लम ये है, मदर बेबी को लेके आई है एंड बेबी इज हैविंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो बेबी को ब्रेस्ट फीड फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स। तो मदर ने ये भी बताया कि मैंने 3 वीक्स तक तो ब्रेस्ट फीड किया था, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ब्रेस्ट फीड, लेकिन बेबी बिकेम अनसेटल्ड ड्यूरिंग द समर हॉट वेव। तो ये लिखना जरूरी है, समर में जब हीट वेव आई, आप कहोगे दिसंबर में तो ठंड होती है, पर ये लेटर्स ऑस्ट्रेलियन बेस्ड होते हैं। ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड में ये उल्टा होता है, समर होती है दिसंबर में। तभी बेबी बिकेम अनसेटल्ड ड्यूरिंग द समर हीट वेव इन दिसंबर। तो यही वो बात समझनी है आपको कि अगर ये लेटर में दिया हुआ है कि कीप द बेबी कूल, कीप द बेबी कूल, इसका मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये इसीलिए दिया हुआ है कि उसको समर वेव में वो अनसेटल्ड हो गया था बेबी। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज का। इसी के हिसाब से अब ये डाटा सिलेक्शन होगी। मैं ये वाली लाइन जरूर लिखूंगा कि ड्यूरिंग द समर हीट वेव वो अनसेटल्ड हो गया। पहले 3 वीक्स उसने प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग की थी, फिर वो अनसेटल्ड हो गया, अभी उसको कॉन्स्टिपेशन भी है। तो सिल्विया गोट सिक और उसके बाद सिल्विया बीमार होगी। मदर इन लॉ आई टू केम टू विजिट एंड एडवाइस चेंजिंग बेबी टू फार्मूला फीड्स। तो मदर इन लॉ ने कहा कि बेबी को फार्मूला फीड्स पे डाल दो। मैरी ने एडवाइस किया, यानी कि मदर इन लॉ ने एडवाइस किया कि एक्स्ट्रा पाउडर डाल दो बेबी को। तभी वो पॉइंट आया है कि उसको सॉफ्ट तभी ये पॉइंट आया है कि सप्लीमेंट करो वाटर के साथ। अब उसने अपनी मदर से नॉलेज ली, मदर इन लॉ से, मदर इन लॉ ने कहा पाउडर डाल दो अच्छे से। लेकिन अब इसीलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ये वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि फार्मूला फीड में टू गेन वेट उसकी मदर ने एडवाइस किया कि ज्यादा डाल दो। ठीक है। एंड सिल्विया वरीड है बिकॉज शी डज नॉट हैव इनफ ब्रेस्ट मिल्क, नाउ गिव्स एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स। तो वो भी फार्मूला फीड्स देने लगी है और ब्रेस्ट फीडिंग भी देती है। डायलन डिफिकल्ट टू बोटल फीड है। सिल्विया विशेस टू ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली एज शी बिलीव। सिल्विया चाहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही हो, लेकिन मैरी चांस प्लान्स टू स्टे विद द फैमिली फॉर एटलीस्ट अ फर्दर मंथ। तो लेकिन उसकी जो मदर इन लॉ है वो 1 महीना और रुकना चाहती है। टेंशंस दोनों मदर और मदर इन लॉ में डेवलप हो रही है, क्योंकि मदर को लगता है ये बेस्ट है और उनको लगता है, अब देखो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट नहीं है, तो आपको ये ज्यादा कहानी को यहीं पे वो डाटा सेव होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है टेंशन इज डेवलपिंग। अगर थोड़ा सा लिखना है तो लिख दो, बट डोंट राइट एवरीथिंग। ऐसे ही आपको बिना बात के ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज इन चीजों को समझो, यहीं पे वो डाटा सिलेक्शन होती है। अगर मुझे इसमें से मेन मेन पॉइंट लिखना हो तो मेरे को सिर्फ यही है कि सिल्विया ब्रेस्ट फीड द बेबी फॉर द 3 weeks but he became unsettled, also she got sick, so mother-in-law came to help, she recommended extra powder in the formula feeds for this, और उन्होंने रिकमेंड किया था चेंज करने के लिए। whereas Sylvia is worried because she does not have enough breast milk but she still believes this is the case। बस इतना ही लिखना होता है और ये मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। ये सब तो नॉर्मल चीजें, ऑब्जेक्टिव साइंस है, हमने देखा ये है। यूरिन डार्क आ रहा है, ऑब्वियसली ये बताना चाहिए। और वेट बढ़ गया है, वेट 3400 से 4200 हो गया। टेम्परेचर नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। स्लाइटली लिथार्जिक है बेबी, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है देखने का।
असेसमेंट माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन की है। अब देखो लेटर हमें पूरा पता लग गया, अब आती है पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो लास्ट में तो हमने पर्पस को पूरा लिखते हैं। अब हम ध्यान से इस लेटर को समझें तो पर्पस क्या बनेगा, देखते हैं पर्पस क्या बनेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं पर्पस। Okay, so this is a new thing for me. So I'm using it for the first time. So spare me if I do something wrong. Yeah. Okay, yeah. It disappears. I don't know what happens to it. Yeah. So I'm gonna write here. Yeah. So अब मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। अब प्लीज समझो, राइट ओनली द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस लेटर इज बीइंग रिटन। प्लीज पर्पस को समझो, पूरा लेटर पढ़ लो। उसके बाद जो भी आपको याद रहता है बस उतना लिखो। फर्स्ट पैराग्राफ को जितना छोटा कर सकते हो, मतलब उतना ही लिखो जितना चाहिए। So please make sure that you write it well. So let me make it disappear. Otherwise, this, yeah, this letter is being written regarding Mrs. Charles. कहानी को बताओ। Who delivered a baby baby Dylan on 4th December 2011, जो भी वहां पे दिया हो। सिर्फ पर्पस। नाउ शी इज फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग फीडिंग। देयरफॉर, बिल्कुल सिंपल अगेन, सो या फिर देयरफॉर। अगेन जितना लेटर मुश्किल आएगा उतना इजी लिख के आना, उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। देयरफॉर अंडर योर एक्सपर्टीज, क्योंकि लैक्टेशन कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है अपने काम की। शी इज फॉर एजुकेटिंग द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग। प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे कि मुश्किल टास्क है। कुछ मुश्किल नहीं होता ओईटी में, अगर आप अच्छे नर्स हो, आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना आता है, तो हर चीज इतनी आसान है। This letter is being written regarding Mrs. Charles, who delivered a baby Dylan on 4th December this. Main point. No hanky panky. Now she is facing, ये this is her current problem. या आप now की जगह लिख सकते हो currently, या नॉर्मल भी लिख सकते हो। She is facing problem regarding feeding. Therefore she is being for educating the mother या for educating her। बाद में बता देंगे सारी स्टोरी। For educating her about breastfeeding and formula feeding। अब आप आराम से बना सकते हो डेविड आइलन। बिल्कुल अगेन आपको देखना, आपको लगेगा इससे आसान क्या हो सकता है। यू विल नॉट फील एनी कॉम्प्लेक्सिटी वट्स एवर। सेकेंड पैराग्राफ बिल्कुल कहानी के साथ चलो। डेविड आइलन वॉज बोर्न, नॉर्मल चीजें, वॉज बोर्न वाया नॉर्मल डिलीवरी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ जनरली लिखने के लिए। एंड ही वॉज फीडिंग वेल, या ही वॉज हैविंग वेट ऑफ 3400 ग्राम्स। ये भी इतना जरूरी नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि अगेन उसको तो एजुकेट करना है फार्मूला फीड और ब्रेस्ट फीड के लिए। फिर भी चलो लिख दिया, थोड़ा सा बता दिया फार्मूला। बेबी वॉज बोर्न वाया दिस। मिस चार्ल्स वॉज फीडिंग हिम वेल, या या वॉज ब्रेस्ट फीडिंग, वॉज ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग हिम वेल अंटिल 3 वीक्स। 3 वीक्स तक सब कुछ ठीक था। मिसेस चार्ल्स वॉज ब्रेस्ट फीडिंग हिम वेल अंटिल 3 वीक्स। बट, या फिर हाउएवर, थोड़ा हाउएवर अच्छा लगता है। हाउएवर द बेबी
became unsettled due to unsettled due to heat wave in December. The mother also got sick and had fever. So her mother-in-law, अगेन बिल्कुल सिंपल, हर कहानी बनानी है हर मदर, ताकि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ही ना आए, उतने ही मार्क्स ज्यादा। हर मदर इन लॉ केम टू असिस्ट हर। अब आपको लिखना पड़ेगा हर मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर टू change the breastfeeding to bottle feeding, and also advised to add extra powder so that the baby can gain weight. However, Mrs. Charles, the mother of the baby, yeah, the baby's mother, sorry, it's a living thing, so apostrophe s. The baby's mother still believes that breastfeeding is the best for the baby, and she is really worried about it. देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, एंड देखना वर्ड काउंट भी अपने आप पूरा हो जाता है। ओईटी इतनी आसान चीज है, जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिखोगे यू आर इन ट्रबल। अब यहाँ पे मैंने जो हाउएवर यूज किया था उसको बट कर देता हूँ, क्योंकि हाउएवर मैं यूज कर रहा हूँ, तो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो या बट, सो अब लगभग ये मेरा तैयार हो गया है। लगभग मेरे हिसाब से ये लेटर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ तो मैंने पहले ही लिख लिया था। अब देखते हैं ये लेटर क्या बने, whether it is good or not, let's see। अब जो एग्जामिनर के पास फाइनल जाएगा वो ऐसा जाएगा, दिस लेटर इज being written regarding Mrs. Charles who delivered a baby Dylan on 4 December 2011. She is facing problem with feeding. Therefore, she is being referred under your expertise for educating her about the breastfeeding and formula feeding. So, उसको to the point मिलेगा lactation consultant को। Baby Dylan was born via normal delivery and he was having weight of 3400 grams. Mrs. Charles was breastfeeding him well until 3 weeks, but the baby became unsettled. ड्यू टू द हीट वेव इन दिसंबर। मैंने सिंपल कहानी बताई कि बेबी बढ़िया चल रहा था, ये हो गया, ठीक है। बिकेम द मदर ऑल्सो गॉट सिक एंड हैड फीवर, सो हर मदर इन लॉ केम इन टू असिस्ट हर। हर मदर इन लॉ एडवाइज हर टू चेंज द ब्रेस्ट फीड टू द, ये भी गलती से बड़ा हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग टू बॉटल फीडिंग, एंड ऑल्सो एडवाइज टू एड एक्स्ट्रा पाउडर। हाउएवर मिसेस चार्ल्स द बेबीज मदर स्टिल बिलीव्स, यहाँ पे मैंने बेबीज मदर इसलिए लिखा ताकि दोनों ही मिस चार्ल्स है, तो मैंने क्लियर कर दिया द बेबीज मदर, और ऊपर से पॉइंट्स भी ले लिया पोस्ट ऑफ यस के, द बेबीज मदर, और सिंगुलर इसके भी पॉइंट्स ले लिए ग्रामर के, सिंगल मदर के साथ बिलीव्स, दिस इज ग्रामर, और दोनों तरफ कोमा। हाउएवर ये सीखो, हाउएवर कोमा मिसेस चार्ल्स द बेबीज मदर, तो ये ब्रैकेट का काम करता है कोमा। तो हाउएवर द बेबीज मदर, ये लाइन चल रही है, ये ब्रैकेट का काम करता है। हाउएवर मिसेस चार्ल्स द बेबीज मदर स्टिल बिलीव्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रामेटिकल रूल्स। एंड शी इज रियली वरीड अबाउट इट। फर्दर, the baby is having mild constipation, and एक और चीज थी, जो भी था वो भी लिख देना, and this, so it would be now, it would be greatly appreciated, या फिर constipation and this। अब यहाँ पे आपने बताया बेबी को ये प्रॉब्लम है, तो आप therefore भी लगा सकते हो, therefore, इसलिए हम कह रहे हैं therefore it would be greatly appreciated अगर आप मदर को एनकरेज करो तो ब्रेस्ट फीड बढ़ा दे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है बेबी को, क्योंकि जब से वो अनसेटल्ड हुई है। तो दिस इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट, दिस इज हाउ सिंपल। एंड वर्ड काउंट आप देखना, जब आप आसान लेटर लिखोगे, प्लीज, तभी मैं कहता हूँ वीडियोस को एंड तक देखो और 2-3 बार सुनो,
जब आप आसान लेटर लिखोगे तो वर्ड काउंट अपने आप कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपने मुश्किल चीज को लिखा ही नहीं और ओईटी को उसकी जरूरत ही नहीं है। और देखो कितने प्यारे प्यारे हाउ एवर दिस, कितने प्यार से। और ये हमने पहले ही तैयार कर लिया था। अब देखते हैं कहानी और वर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स ऑलमोस्ट इन 1 2 3 4। इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अभी भी लाइंस एक्स्ट्रा हैं, कम नहीं है। इतना कम करने के बाद भी, यानी आपको इससे भी छोटा लिखना था। जिस लेटर को आप मुश्किल कह रहे हो, इससे भी आसान किससे, मतलब अगर मैं ये भी लिख देता कि मिसेस चार्ल्स वाज ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल बट द बेबी बिकेम अनसेटल्ड ड्यू टू वर्ड। अब ये सब कहानी भी अगर नहीं बताता एक्स्ट्रा फार्मूला फीड्स की, बस ये बता देता अदर अदर एंड शी एडवाइज्ड अबाउट, ये लो, एंड मदर इन लॉ एडवाइज्ड अबाउट एक्स्ट्रा सो दैट द बेबी कैन गेन। यानी इस लाइन की वाकई जरूरत नहीं थी, बेबी इज हैविंग कॉन्स्ट। पर ये अभी तक इसमें से मुझे ऐसा नहीं लगा, कुछ भी जरूरी नहीं है, शायद किसी में कम वर्ड्स भी होंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 ही है। 1 2 3, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ 6 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाँ कुछ वर्ड्स कम होंगे। तो मतलब इतना कम लिखने के बाद भी ये 220 वर्ड्स तक जा रहा है। तो आप समझ लो कि कितना कम। अब जैसे ये ज्यादा जा रहा है फर्दर, इफ द फार्मूला फीड इज कंटिन्यूड, तो इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये वर्ड्स फालतू हैं। तो मुझे इतना बड़ा लिखना नहीं है, ऊपर से एक पैसिव वॉइस भी बना दूंगा। फर्दर इफ फार्मूला फीड इज कंटिन्यूड, इट शुड बी सप्लीमेंटेड विद वाटर। ये लो, ये वर्ड भी काउंट कम हो गया, एक दो लाइनें और कम होगी। एंड द मदर शुड बी केप्ट, प्लीज नोट इट इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमाइंड द मदर। सो इसको सिंपल कर देता हूँ, प्लीज रिमाइंड द मदर फॉर हर रिव्यू अपॉइंटमेंट आफ्टर 48 आवर्स। अगेन वर्ड काउंट ऐसे कम होता है। एंड नाउ लेट्स सी द वर्ड काउंट अगेन। अब बिल्कुल कंट्रोल्ड होगा, दिस इज व्हाट इट नीड्स। तभी ओईटी का लेटर, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कुछ भी ओईटी के लेटर में मुश्किल लग रहा है लिखते हुए, तो समझो आप वो गलत लिख रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। ओईटी का लेटर इतना सिंपल होता है कि जब आपका आंसर शीट आए तो वो अपने आप में कंप्लीट हो। यानी ये भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वेट इज ऑल्सो नॉट द मेन प्रॉब्लम एट द मोमेंट। इसको भी बचा सकता था मैं, इस लाइन को भी, लेकिन चलो इतना सा बताना है, वैसे बचा सकता था। तो अब देखो दोबारा, अगर आप लैक्टेशन कंसल्टेंट हो, अगर मैं आपको लेटर लिख रहा होता, तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस चार्ल्स, जिसने बेबी को डिलीवर किया है, फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी वैसे ठीक था, 3 वीक्स तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बेबी अनसेटल्ड हो गया जब से वो पता लगा। और द मदर ऑल्सो गॉट सिक। तो मदर इन लॉ आई, उन्होंने कहा जी फार्मूला फीड दे दो, लेकिन मिस चार्लिस को अभी भी वो है और वो बहुत वरीड है इस चीज को लेके। और बेबी को भी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन और वो चल रही है। इट वुड बी ग्रेटली देयर फॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड अगर आप, दिस इज लेटर यार, दिस इज कोहेसिवनेस, इसके अंदर सब कुछ है। इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 400, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। So please listen to this recording again and again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Thank you.